Hello students, this is Priyanka, your biology teacher, SVS Smart Classes. Students, अब तक हमने जो चैप्टर लिया था क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे. टुडे वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. So, what do you mean by life process? All the process which are necessary to maintain life in an organism are called life process. देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. द प्रोसेसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, ठीक है. Second, respiration. Third is transportation, and the fourth is excretion. Now come to the nutrition. Nutrition is the process by which an organism takes food and utilize it to get energy for growth, repair, maintenance, etc. The materials which provide nutrition to living organism are called nutrients, like carbohydrates, fats, protein, vitamins, etc. There are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organism produces their own food from simple inorganic material like water, CO2 in the presence of sunlight. Example, plants. In heterotrophic nutrition, organism depends upon other organism for food to survive. Example, human being, amoeba. Now come to the nutrition in plants. For nutrition in plants, there is a process called photosynthesis in which green plants convert simple inorganic materials like water, CO2 into complex food material in the presence of chlorophyll and sunlight. And that complex food material is glucose, C6H12O6 glucose. ठीक है. There is a reaction of photosynthesis, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it convert into glucose. ठीक है. ये जो आपका CO2 है, it comes from surrounding in plants and this H2O comes from the roots. There are three events which occur during photosynthesis. First is absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll क्या? Chlorophyll is a pigment which present in the chloroplast in plant cell. And the second event is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Look, ये जो आपका हाइड्रोजन कहाँ रिडक्शन जो होगा इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ये जो आपका वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये स्प्लिट डाउन होगा और ये क्या देगा, इट गिव्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर द रिडक्शन. देखिए आपका जो CO2 है इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज ना, इट एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या है, इट इज रिडक्शन. देखिए थर्ड इवेंट है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, ग्लूकोज. ये आपकी एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या है, आपको दो हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं A एंड B. कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days. आपके जो ये हेल्दी प्लांट है A एंड B, आपको 3 दिन के लिए इनको एक डार्क रूम में रखना है. देन नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of plant A. आपको प्लांट A के क्लोज में क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है एक वॉच ग्लास पे. ठीक है. उसके बाद आपको सेपरेटली इन दोनों प्लांट्स को बेल जार से कवर करना है, सील कर देना है ताकि इनको एक एयर टाइट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो विद द हेल्प ऑफ वैसलीन. देन कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. Then pluck a leaf from each plant. ठीक है. Then put the leaves in separate beakers containing ethyl alcohol. Now place the beaker in boiling water and heat them. हीट करने के बाद जो आपका इथाइल अल्कोहल था वो क्या करेगा, इट विल डीकलराइज द लीफ बाय डिजॉल्विंग द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम. नाउ वॉश द लीव्स विथ वाटर. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आयोडीन सोल्यूशन को
आयोडीन सॉल्यूशन में आप जो लीव्स हैं उनको डालना है। देखिए जो आपका आयोडीन सॉल्यूशन है, जो आपका आयोडीन टेस्ट होता है वो क्या करता है, इट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। नाउ चेक द लीव फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय आयोडीन टेस्ट। देखिए आयोडीन टेस्ट क्या होता है, ये क्या करता है, आपके स्टार्च का स्टार्च टेस्ट करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करता है। देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से, द लीव फ्रॉम ए रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आयोडीन सोल्यूशन, अगर आप आयोडीन सोल्यूशन में आपने प्लांट ए की लीव को डाला तो जो क्या है, उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका प्लांट ए में स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसने क्या किया था, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था, CO2। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, दैट मीन्स स्टार्च नहीं होगा वहाँ पे। तो जो आपका आयोडीन सोल्यूशन है उसने क्या टेस्ट किया प्लांट ए में कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, thus starch is not present in it. Then the leaf from plant B turns bluish in the presence of iodine। देखिए हमने जो प्लांट B के पास क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी, CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी तो आपका स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा। अगर आपने लीव को आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, दस स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। तो आपके जो प्लांट बी है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई है, दैट मीन्स क्या है, आपका स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका जो लीव का कलर है वो ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लूइश इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आपने क्या कंक्लूड किया इस एक्टिविटी से, क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेस नियर द pot A absorb all the carbon dioxide, hence plant A cannot perform photosynthesis, that means CO2 is necessary for photosynthesis reaction, ठीक है। Now come to the second type of nutrition, that is heterotropic nutrition. This nutrition is further divided into three type of nutrition. First is saprophytic nutrition. In saprophytic nutrition, organism obtain food from dead and decaying organic matter. From dead and decaying organic matter. Example, there are some bacteria and fungi. Now come to the parasitic nutrition. In this type of nutrition, organism obtain food from another organism without killing them. Example, cascuta क्या, अमरबेल, tapeworm, lice, ठीक है। Now come to the holozoic nutrition. It involves ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid and solid organic material. Example है आपका humans and animals, ठीक है। holozoic nutrition बेसिकली क्या होता है, देखो holozoic nutrition में आपके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इंजेशन, आप फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, दैट इज इंजेशन। नाउ डाइजेशन, फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर आपका जो फूड मटेरियल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सम विटामिन, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। देन लास्ट इज एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड एनिमल्स। नाउ कम टू द टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए जो अमीबा है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो भी क्या होता है, होलोजोइक होता है, ठीक है। इन अमीबा देयर इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये डायग्राम आप देखो, ये आपका क्या है, अमीबा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल। तो आप अमीबा क्या करेगा, जो इसकी सरफेस है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सूडोपीडिया, ठीक है। सूडोपीडिया क्या करेगा, ये अपनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा अमीबा, विच इज़ कॉल्ड सूडोपीडिया। फिर आपका जो ये फूड पार्टिकल है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बनेगा अमीबा में, अंदर जाएगा ये अमीबा के इन फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, देन एसिमिलेशन एंड देन फाइनली इजेशन ऑफ
वेस्ट मटेरियल इन अमीबा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं। अमीबा कैप्चर्स फूड नियर इट्स बॉडी थ्रू सूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूल। ठीक है, enzymes enter food vacuole from cytoplasm. The enzyme convert the taken food to smaller substance which can be absorbed by body. The digested food diffuses out to reach the entire body. Then body use the food for growth, etc. That is called assimilation. And then finally cell membrane of amoeba ruptures at any point to throw out waste material. Now come to the nutrition in paramecium. पैरामीशियम अमीबा क्या है? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखिए पैरामीशियम में भी जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, इसमें भी देखो पैरामीशियम में भी डाइजेशन क्या होगा आपका? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में? इंजेशन। इसमें क्या पैरामीशियम इनगल्फ्स फूड बाय द यूज ऑफ सीलिया। देखिए पैरामीशियम के सरफेस पे क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक एक्सटेंशन है फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ पैरामीशियम, दिस इज कॉल्ड सीलिया। ये क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, नाउ सेकेंड इज डाइजेशन। In paramecium, food is digested in food vacuole by the digestive enzyme released by cytoplasm. Now third is absorption. The digested food present in food vacuole is directly absorbed into cytoplasm by diffusion. ठीक है, now the fourth is assimilation. In assimilation, the absorbed food nutrients is stored and utilized later for synthesis of energy. फिफ्थ क्या है? इजेशन। इन इजेशन द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनाल पोर। ठीक है, नाउ कम टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए इन ह्यूमन बींग देयर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच देयर इज अ माउथ। माउथ से क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, टीथ। ठीक है, टीथ किस में हेल्प करते हैं? क्रशिंग ऑफ फूड में। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इज इंसिजर, इट विल हेल्प इन कटिंग ऑफ फूड। सेकेंड इज कैनाइन, ये क्या करते हैं? टीयर करते हैं फूड को। प्रीमोलर, ये क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं फूड को। मोलर, इट विल क्रश फूड। ठीक है, टंग, टंग का क्या रोल होता है? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड एंड मिक्स द फूड विद सलाइवा। ठीक है, now come to salivary gland. There are 3 type of salivary gland. First is parotid gland. It is located in front and beneath the ear. ठीक है, ईयर के पास में ये फ्रंट में लोकेट होते हैं। सेकेंड इज सबलिंगुअल, इट इज लोकेटेड बिलो द टंग। ठीक है, थर्ड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बिलो द जॉ। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस द सलाइवा। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपका सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आपके सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड सेलेवरी अमाइलेज। इस सेलेवरी अमाइलेज का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है, देखिए आपने फूड इंटेक किया कोई भी, ठीक है, स्टार्ची फूड इंटेक किया, उसमें स्टार्च है, तो आपका जो सलाइवा में जो एंजाइम है सेलेवरी अमाइलेज, वो क्या करेगा? आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, फिर ये क्या है आपकी? इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? बेसिकली फूड पाइप है। देखिए इन दिस डायग्राम, ये जो आपका डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ, बकल कैविटी, ठीक है, ये इसोफेगस। ठीक है, ये क्या है? आपका फूड पाइप है। ये आपकी स्टमक है जे शेप्ड। ये क्या है? लिवर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर का क्या होता है? इट सिक्रीट्स द बाइल जूस सॉल्ट्स। ठीक है, और जो लिवर ने जो सिक्रीट और प्रोड्यूस किया है बाइल जूस, वो कहाँ पे स्टोर होंगे? इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड ये क्या है आपका? पैनक्रियाज, ये वाला। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने अब तक कहाँ तक कवर किया था? इन सलाइवरी ग्लैंड तक। ठीक है, ये एसोफेगस हो गया था। नाउ कम टू द स्टमक। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। ठीक है,
स्टमक में क्या होता है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखिए यहाँ से आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, ये जो फूड है आपके स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस कैसे जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फूड पाइप में, आपके क्या होता है, एक मूवमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस में क्या होता है, जैसे फूड आया, ठीक है, तो आपका जो फूड पाइप है थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा आपका फूड पाइप एक्सपेंड होगी और ऊपर से क्या होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, एक्सपेंशन, तो ये क्या होता है, ये मूवमेंट जो होता है इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, विच कंटेन HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl का क्या काम होता है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जो पैप्सिन है इसका क्या काम होता है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। देखिए जो आपके फूड में जितनी भी प्रोटीन्स हैं क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनको सिंपलर फॉर्म में दैट इज अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कौन करेगा, कौन सी एंजाइम कन्वर्ट करेगी, पैप्सिन, ठीक है। और ये म्यूकस का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, तो अगर HCl क्या है, इट विल डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक ना, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। तो जो म्यूकस है जो इसके एक्शन को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। नाउ कम टू द लिवर। लिवर का क्या काम है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल जूस का जो नेचर होता है, किस नेचर का होता है, इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। और जो बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है, इट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स विच इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आपके क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। और आपका गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस एंड सॉल्ट है वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। Now come to the pancreas. It secretes the pancreatic juice, contains an enzyme called trypsin and lipase. Pancreas क्या करते हैं, pancreatic juice secrete करते हैं और उन pancreatic juice में क्या होते हैं, enzyme होते हैं which is called trypsin and lipase. Trypsin का क्या function है, it breaks down protein into amino acid, ठीक है। lipase का क्या काम है, ठीक है। देखिए लाइपेस क्या करता है, इट फर्दर ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट। देखो इमल्सिफाइड फैट क्या, ये जो आपका इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, बाइल सॉल्ट करेंगे इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है इमल्सिफिकेशन में, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। तो फर्दर जो आपका लाइपेस है वो इमल्सिफाइड फैट पे काम करेगा, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो आपके कितने जैसे पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया, ठीक है, लिवर ने बाइल जूस सॉल्ट सिक्रीट किए, ये आपके जो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये कहाँ पे आएंगे, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज। तो आपका जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो कहाँ पे होगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या होगा, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी, शुगर में। फैट किस में होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में होगा, अमाइनो एसिड में, ठीक है। देखिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड विलाई। विलाई क्या है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। Villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cells of the body। देखिए इस डायग्राम में ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या है, विलाई, ठीक है। क्या है ये, विलाई। ये क्या करती है, आपका विलाई
इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर its wall absorb more water from the waste material and rest of the material removed from the body by a anus. The exit of the waste material is regulated by the anal sphincter. देखिए आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल जब आपका फूड स्टमक में आएगा तो यहाँ पे भी आपका एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मूवमेंट को गाइड करता है, ठीक है। वैसे ही जब आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक एनाल स्फिंक्टर होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. In aerobic respiration, it is a process of producing energy in presence of oxygen. In anaerobic respiration, it is a process of producing energy in absence or lack of oxygen. देखिए जो आपका बॉडी में जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में किस में ब्रेक होगा, इन पायरुवेट एंड एनर्जी. जो आपका पायरुवेट है इट फर्दर ब्रेक्स डाउन, ठीक है. अगर ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. एग्जांपल है आपका ईस्ट. देखिए जब कोई भी चीज़ आप बेक करते हैं लाइक ब्रेड, केक्स, तो आप क्या यूज़ करते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. ईस्ट यूज़ किया तो क्या होगा, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ CO2, जिससे आपका जो केक और जो ब्रेड हैं वो बहुत फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है. और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. एग्जांपल है मसल सेल्स, ठीक है. जिसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है या कोई एक्सरसाइज की है, तो देखिए आपके मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते हैं, बहुत ज़ोर से ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है. लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट है इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, इट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, क्रैम्प प्रोड्यूस करता है इन मसल सेल्स, ठीक है. इसीलिए आप ज़ोर से सांसें लेने पड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो लैकनेस है, जो ऑक्सीजन की कमी है वो कंपनसेट हो, ठीक है. एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर, CO2 एंड एनर्जी, ठीक है. देखिए ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में सेल के, इट ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट, देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर, CO2 एंड एनर्जी. तो जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ये मतलब आपका ये कहाँ पे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया. जो ये वाली रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. और जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी इसको कहाँ यूज़ करेंगे, इज़ यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड ATP. ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ही क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है. तो आपकी जो एनर्जी है वो किस में स्टोर होगी, किस फॉर्म में स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ ATP. जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो ATP क्या होगा, ATP का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है. तो फिर से एनर्जी रिलीज हो जाएगी. नाउ कम टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये आपका नेजल पैसेज है, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ये कॉमन होता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम में. और आपका जो ईसोफेगस और जो विंड पाइप का जो कॉमन एरिया होता है उसे कहते हैं फेरिंग्स. लैरिंग्स आपका जो होता है वो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है. दैन ट्रैकिया, ये आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, जो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स. देखिए ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, ठीक है. नोज के थ्रू जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर है वो आपकी बॉडी में जाएगी. देन द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन नोज. नोज में क्या है, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है.
From nose, the air passes through the throat to lungs. In lungs, the air passage divide into smaller and smaller tubes and finally reach in alveoli. देखिए जो आपका ट्रेकिया है वो फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। फिर फर्दर आपका क्या होगा, डिवीजन होगा इन फाइन ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ये जो आपका ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा, ठीक है। एंड फाइनली रीच इन एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई क्या है, इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये आपके बिल्कुल एंड पे जो ब्रांचिंग पैटर्न है लंग्स में, बिल्कुल एंड में क्या होता है, एल्वेलाई होती है। क्या है, इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। जो एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वेलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। देखिए आपकी जो ऑक्सीजन है वो फाइनल नोज से लंग्स, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर फाइनली कहाँ पे आएगी, आपकी एल्वेलाई में आएगी, ठीक है। एल्वेलाई में क्या है, ब्लड वेसल से ये क्या है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, ठीक है। आपने ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर एल्वेलाई में आएगी तो वो अदर ऑर्गन्स और बॉडी में कैसे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन RBC, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग CO2 फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वेलाई। जो आपका CO2 है, जो ब्लड वहाँ पे जो ब्रिंग करेगा CO2, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स, वो कहाँ पे रिलीज होंगी, इन एल्वेलाई। देन एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, नोस्ट्रल, नोज से होती हुई क्या आ जाएंगी, इट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। नाउ कम टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, देयर आर 3 प्रोसेस। फर्स्ट होता है स्टोमेटा इन लीव्स। आपके देखिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। फर्स्ट lenticels in stem and third is surface of roots. Now come to the third process which is called transportation. Transportation in humans, there is a blood which is called connective tissue, ठीक है। It transport necessary substances to cell and transport metabolic waste produced away from those same cells, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा, इट इज़ येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट CO2, वेस्ट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। सेकेंड इज RBC, इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin which transports oxygen. थर्ड इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए जब भी आपको कभी चोट लगती है तो कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है, कंटिन्यू ब्लड लीक होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। WBC, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स, ठीक है। जो WBC है ये क्या करती हैं, इट प्रोवाइड्स अ डिफेंस मैकेनिज्म to the body. Now come to the heart. Heart is a muscular organ. It have 2 sides separated by a muscular wall, ठीक है। आप it have 4 chambers. आपके हार्ट में कितने चैम्बर, देखो 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये जैसे कि हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, 2 साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये फर्दर आपका चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये वाली साइड होगी लेफ्ट, ये वाली साइड हो गई राइट, ठीक है। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं इनको कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। द अपर 2 चैम्बर्स आर आर्ट्रियम एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। लेट्स सी दिस डायग्राम ऑफ हार्ट। देखिए ये आपके जो हार्ट है, देखो 2 उसमें डिवाइड है, ठीक है। फिर ये आपके फर्दर डिवाइड हो रहा है चैम्बर्स में। ये आपके ऊपर के 2 चैम्बर्स, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, आर्ट्रियम। और जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं ये इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन है,
ठीक है। तो ऊपर वाला आपका जो चैम्बर है वो क्या हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट वाले साइड में ऊपर वाले चैम्बर को राइट आर्ट्रियम, नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये देखो ये सेप्टम, ये क्या है, डिवाइडिंग वॉल है, जो क्या कर रहा है आपके हार्ट को लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। नाउ कम टू द ब्लड वेसल। फर्स्ट इज आर्टरी। ठीक है। आर्टरी का क्या काम होता है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए ये जो अरोटा है आपका, ये अरोटा, ये क्या है, इट इज़ अ आर्टरी। ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो ये जो एरो बन रहे हैं, ये क्या है, ब्लड आपका कहाँ से जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है। ठीक है। कौन लेके जा रहा है, अरोटा। अरोटा क्या है आपकी, आर्टरी। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी आर्टरीज दी हुई हैं फिगर में, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये क्या है, आर्टरी है। ये देखिए एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ से जा रहा है, हार्ट से जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज। तो आर्टरीज का क्या काम है, इट टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। ब्लड कैरीड क्विकली अंडर हाई प्रेशर। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी आपकी कौन सी है, अरोटा है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, अरोटा। एंड जो आपकी आर्टरीज में होते हैं कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। आर्टरी क्या, अ ब्लड वेसल्स विथ थिक मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमन। दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टरी। ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड ब्लड वेसल कॉल्ड वीन। इसका क्या काम है, इट टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। लुक स्टूडेंट, देखिए जो आपका जो कहाँ गई, जो जैसे ये वीन है, पल्मोनरी वीन। ठीक है। वीन का क्या काम होता है, ये हार्ट में ब्लड लेकर आती है। ठीक है। तो देखो ये एरो क्या डिपिक्ट कर रही है कि आपका ब्लड कहाँ पे आ रहा है, इन हार्ट। ठीक है। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वीन। ये देखो ये जो वेना कैवा है, ये क्या है आपकी, वीन है। वेना कैवा क्या है, वीन। ठीक है। ब्लड आ रहा है, किस में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, वीन। तो वीन का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीन, इट टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है। ब्लड कैरिड स्लोली अंडर लो प्रेशर एंड इट हैज़ वेव्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है। लार्जेस्ट वीन कौन सी है आपकी बॉडी में, वेना कैवा। ठीक है। ये देखो ये आपका स्ट्रक्चर है आर्टरी का और वीन का। ठीक है। जो वीन का जो होता है, द ब्लड वेसल विथ थिन मस्कुलर वॉल एंड लार्ज ल्यूमन। नाउ कम टू द थर्ड ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरी। द ब्लड वेसल विथ वॉल 1 cell thick and very small lumen. ठीक है। It usually carries blood at low pressure. Found around tissue where nutrients and waste are exchanged. ठीक है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessel to bring the blood in contact with all the individual cell. देखो जो आपकी आर्टरी है, जो ब्लड आपका हार्ट से लेके जाएंगी, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, और आपकी बॉडी के अदर सेल्स में, ऑर्गन में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आर्टरी आपकी वो फर्दर क्या होंगी, डिवाइड होने लगेंगी। ठीक है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels. ठीक है, to bring the blood in contact with all the individual cell. The smallest vessel have wall which are 1 cell thick and are called capillaries. तो आपको जो आर्टरीज है वो फर्दर डिवाइड होंगी स्मॉल ब्लड वेसल्स में, उनको क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल take place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. देखिए आपका जो आर्टरी है वो प्योर ब्लड लेकर कहाँ आएंगी, आपके टिश्यूज़ में आएंगी। ठीक है। टिश्यूज़ में क्या है, आपके जो आर्टरी हैं वो फर्दर डिवाइड हो रही हैं किस में, इन कैपिलरीज में।
ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, आपके टिश्यूज़ में जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है वो क्या होगी, टिश्यूज़ में जाएगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा लाइक CO2 वो वापस कौन लेके जाएगा, आपके टिश्यूज़ में से वीन्स लेके जाएंगी। तो वहाँ पे जो कैपिलरीज है, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं, वो फर्दर क्या होंगी, जॉइन होंगी टू फॉर्म वीन्स। तो जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे आर्टरी आपका क्या है, प्योर ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में। ठीक है, आर्टरी फर्दर डिवाइड हो रहा है इन कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, O2 आएगा, CO2 वापस जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वीन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ जाएंगी, इन हार्ट में। ठीक है, इम्प्योर ब्लड कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट में। तो आपके कैपिलरीज क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, जॉइन हो रही है। ठीक है, जो बहुत सारी कैपिलरीज क्या होंगी, जॉइन होंगी टू फॉर्म वीन्स विच कैरीज द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, नाउ कम टू द लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड also involved in transportation called lymph or tissue fluid through the pores present in the wall of capillaries। ठीक है, आपके जो कैपिलरीज हैं उनमें क्या है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन पोर्स में से जो आपका देखिए, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है, जो कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट है वहाँ से क्या होगा, ब्लड लीक होगा, कहाँ पे, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ टिश्यू। जो आपका ब्लड लीक होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा होगा, प्रोटीन्स होंगी एंड सम ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessel that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। जो आपका लिम्फ होती है वो क्या कैरी करती है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को, कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन, और आपका ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड, और जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको वापस आपके ब्लड में क्या करती हैं, ड्रेन कर देती है। ठीक है, नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ हार्ट। देखिए, आपने आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन है। ठीक है, आपके लेफ़्ट वाले पोर्शन में कौन सा ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, हार्ट में ब्लड कौन लेकर आता है, कौन लेकर आता है, वीन्स। कौन सी वीन लेकर आएगी, पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो आपके लंग्स में जो एल्वेलाई है वहाँ से कौन लेकर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो आपके लेफ़्ट वाले आर्टरी में ब्लड क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा ब्लड, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अदर ऑर्गन्स में जाएगा। कौन लेके जाएगा, ब्लड को हार्ट से कौन लेके जाता है, आर्टरी। ठीक है, तो कौन लेके जाएगा, अरोटा। ये क्या है, आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, और आपके राइट वाले पोर्शन में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड। आपके जो सेल्स हैं, टिश्यू है, उन्होंने CO2 प्रोड्यूस किया। CO2 क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, वो कहाँ है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो कौन लेकर आएगा, राइट वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, वेना कैवा। वेना कैवा क्या है, आपकी वीन है। ठीक है, फिर कहाँ ये फिल हो जाएगा, फिर आपका राइट वाला वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ जाएगा, इन लंग्स। कहाँ जाएगा,
लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है। CO2 का क्या होता है, CO2 एक्सपेल्ड आउट हो जाती है और O2 आपके विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग क्या O2 आती है, तो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट होने के लिए, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, वर्किंग ऑफ हार्ट। Deoxygenated blood comes from the body to right atrium, which then pump to your lungs by right ventricles through arteries, where it drop CO2 and carry O2. Then oxygenated blood comes to left atrium through veins, which then pump to body parts by left ventricle through aorta. ठीक है, देखिए इस डायग्राम में देखो, ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये आपके 4 चैम्बर्स, ये वाला लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। ऊपर वाले आपके आर्ट्रियम है, नीचे वाले आपके वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये आपके लंग्स, कैपिलरीज, ठीक है, एल्वेलाई में। तो देखो आपका जो ये जो रेड वाला है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो ये आपका कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वीन्स फ्रॉम लंग्स। देखिए ये एरो कहाँ पे लेके आएगा, इन लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। फिर कहाँ पे फिल हो रहा है, इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड कहाँ पे जाएगा, टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अरोटा। अरोटा क्या है, आपकी आर्टरी है, ठीक है, विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। कहाँ पे लाएगा, ये टिश्यूज़ में लेके आएगा, कैपिलरीज में, ठीक है। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन, अरोटा। फिर आपके ये राइट वाले पोर्शन में कौन सा ब्लड पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, फ्रॉम द टिश्यूज़, कौन लेके जाएगा, वेना केवा। वेना केवा क्या है, आपकी वीन है, ठीक है। कहाँ पे आएंगी ये, आपके राइट वाले आर्ट्रियम में, ठीक है। फिर कहाँ पे, इन राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने के लिए, इन लंग्स कैपिलरीज। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या है, दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ हार्ट। नाउ कम टू द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बेसिकली है क्या, देखिए आपके हार्ट में एक बारी लेफ्ट वाले पोर्शन में और एक बारी राइट वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है। तो एक बार में आपका जो ब्लड है वो कितनी बार पंप होगा, 2 बार। तो क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। Invertebrate circulatory system are also called double circulatory system because blood passes through the heart twice per circuit, ठीक है। एक बार लेफ्ट से और दूसरी बार राइट से। The right pump sends deoxygenated blood to the lungs where it becomes oxygenated and return back to the heart, ठीक है। लंग्स में क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो रही है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। फिर वो वापस कहाँ आ रही है, हार्ट में। जो आपका लेफ्ट वाला पंप है, जो आपका लेफ्ट पंप सेंड्स द न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड द बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नाउ कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट में किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आपके 2 ट्रांसपोर्टर टिश्यू प्रेजेंट है। फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन में, from roots to the highest point of the plant. Phloem क्या करता है, it transport food from leaves to other parts of the plant, ठीक है। आपका जो फ्लोएम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ठीक है।
लीव्स में ही तो आपका फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, आपका फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड, देखिए वाटर का जो रूट्स हैं क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो आपका जाइलम क्या करेगा, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करेगा ना वाटर, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। फ्लोएम क्या करेगा, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ठीक है। जो आपका जाइलम है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जाइलम जो है आपका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपरेशन। फ्लोएम में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपरेशन, एंड फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। नाउ कम टू द फोर्थ लाइफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी generates many kind of waste. It is a process in which waste are removed from our body called excretion. It is a process of removal of harmful nitrogenous waste from the body, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, द वेस्ट विच कंटेन्स नाइट्रोजन, एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एट्सेट्रा, ठीक है। ये डायग्राम है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच कंटेन अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, ये किडनीज। फिर क्या है आपकी, ये यूरेटर प्रेजेंट है, ये क्या है आपकी रेनाल आर्टरी, ये रेनाल वीन, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज का क्या फंक्शन है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। किडनी क्या करती हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती है। यूरेटर का क्या फंक्शन है, इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या है फंक्शन है, इट स्टोर्स द यूरिन। देन आपका यूरिन कहाँ से ट्रांसमिट होगा, यूरेथ्रा से, ठीक है। यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है, इट ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। देखिए आपका किडनीज में जो ब्लड फिल्टर है वो कैसे होगा, देखिए आपकी किडनी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। नेफ्रॉन आर filtration unit of kidneys. It consists of a tube which is connected to duct and a cup shaped structure that is Bowman capsule. देखिए ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये आपका क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ये क्या है, नेफ्रॉन है। आपके किडनीज में क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी रेनाल आर्टरी है, रेनाल आर्टरी क्या करेगी, ब्लड लेकर आएगी, ये रेनाल आर्टरी, ये क्या है, रेनाल वीन, तो ये क्या करेगा, आपका ब्लड को फिल्टर करेगा बोमन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फिल होगा, जितना भी आपका यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, जो आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, इस ट्यूब्यूलर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस ट्यूब्यूलर पार्ट में आ जाएगा, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो कहाँ से फिल्टर हुआ है, फ्रॉम ब्लड, वो कहाँ पे आएगा, इन ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आपका जो फिल्टर जो ब्लड हुआ है उसमें कभी कभी क्या, उसमें आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, एट्सेट्रा। तो आपका जो ब्लड फिल्टर हुआ है, वेस्ट के साथ साथ कभी आपकी बॉडी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, फिल्टर होगी। तो हमें क्या करना है, इसको वापस से एब्जॉर्ब करना है,
ठीक है। तो आपका जो ट्यूबुलर का जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या, रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आपका जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल में जो ब्लड है, ये वापस जो आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो फिल्टर हो गए हैं, ये वापस से कहाँ आ जाएंगे, इन ब्लड वेसल्स। जो ये आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल का, वापस से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। कहाँ से, फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आ जाएंगे, इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इन कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे आके ओपन होते हैं, इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से जो आपका वेस्ट जो यूरिन जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, इन यूरेटर। यूरेटर से फिर आपका यूरिन कहाँ आएगा, इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रांसमिट आउट होगा फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। देखिए हैनल्स लूप में आपका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर, ठीक है। दैन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी bladder. Now come to the excretion in plant. Plant remove oxygen through stomata. Stomata present होते हैं प्लांट की लीव्स में, वहाँ से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा में, ठीक है। तो प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. Plant also lose some old leaves and barks. So this is your complete chapter life process, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।